بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ان دنوں پاکستان میں ایک دہشت گردی کی نئی لہر اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا نے ایک بار پھر پاکستان کو ایک خطرناک ملک کہنا شروع کر دیا۔ وہ امن جو ہم سب نے بہت ہی قربانیوں کے بعد حاصل کیا دوبارہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر باہر جا رہا ہے۔ سوال یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اور ریاست نے کہاں غلطی کی، جبکہ ہم دشمن کو شکست فاش دے چکے تھے۔ دشمن کو زندہ کس نے کیا اور کیسے کیا، اس پر بات کیے بغیر یا سوچنے کے بغیر کیا ہم یہ دوبارہ جنگ جیت سکتے ہیں یا نہیں، پاکستان میں ایک عجیب رومانس ہے افغان طالبان کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو افغان طالبان کے نظریات کو آئیڈیل اور طالبان حکومت کو اسلامی نظام سمجھتے ہیں۔ افغان طالبان کے اس رومانس نے پاکستان کو نہ پہلے فائدہ دیا اور نہ ہی آج فائدہ دے رہا ہے، نہ ہی آئندہ فائدہ دے گا، بلکہ ہم افغان طالبان کو غیر ضروری طور پر اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے، اور اس طرح جو افغانستان پاکستان سے رائٹیں حاصل کر رہا ہے، وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگا، اور امریکہ کی طرح افغانستان بھی پاکستان کو ڈوم اور کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ وہ پاکستان کو افغانستان بنانے کی کوشش میں نظر آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمارے وطن عزیز میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ افغان طالبان اپنا نظام حکومت پاکستان تک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالبان نے بندوق کے زور پر افغانستان پر قبضہ کیا اور وہاں کی حکومت حاصل کی، اور وہ اسی طرح پاکستان طالبان TTP کے ذریعے وہی طریقہ پاکستان میں آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بھی بندوق کی طاقت سے پاکستان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے نظریات کو پھیلاتے ہیں، اور طالبان نے افغانستان میں خود کش حملوں اور بم دھماکوں اور چھپ کر حملے کرنے کے بعد اور افغانستان میں خوف کی فضا پھیلا کر افغانستان کے عوام کو خاموش کرا دیا گیا، اور یہی وہ کیفیت پاکستان میں بھی خوف پیدا کر کے سب کو خاموش کرانا چاہتا ہے۔ پاکستان طالبان کے سہولت کار ہینڈلر بھی اپنے ہی ملک کو تباہ کرنے کے مشن پر جاری ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان میں TTP جو کچھ کر رہی ہے، اس میں طالبان کی مدد سے وہ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی TTP کو جان کر اپنی حمایت کر رہے ہیں، وہ سرحدوں پر حملے کر رہے ہیں تاکہ ہزاروں لوگ آنے جانے میں آسانی رہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی کہانی جاری ہے، اور افغان طالبان
एक अपने दौर में मक्कारी रखते हैं, चालाक हैं। उनकी डिप्लोमेसी की बुनियाद भी चालाकी और मक्कारी पर है। वो एक तरफ कतर में अमेरिका के साथ सियासी बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान में बम धमाके करते हैं और कराते हैं, और इसी तरह वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल भी करते हैं। विरोधी दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया कि अफ़गान तालिबान हुकूमत में आने से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, और अफ़गान तालिबान आएंगे तो अफ़गानिस्तान में इंडिया का नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा और TTP को अफ़गानिस्तान में कोई जगह छुपने को नहीं मिलेगी। अफ़गान तालिबान या TTP के आदमियों को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे, मगर ऐसा ना हो सका। और क्या आज ये सवाल अहम नहीं, अफ़गान तालिबान हमारे दोस्त हैं। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बयान नज़रों से गुज़रा, जो कहते हैं हम जो तालिबान या TTP के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके 40,000 लोगों को पाकिस्तान में लाकर आबाद करने थे, और उनमें 14,000 के करीब TTP के मुजाहिदीन थे। उनके मुज़ाकरात के नीचे वो स्वात, मालाकन, दीर, अपर दीर में अपने पाँव जमा चुके। शुमाली वज़ीरिस्तान हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो, थानों पर हमला करके अपने परचम लहरा रहे हैं। ये सब कुछ साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और PTI की हुकूमत के दरमियान जो 4 साल का अरसा रहा, उसमें ये बदकिस्मती से TTP को मजबूत करते रहे, और दुनिया आलम में इमरान खान अफ़गान तालिबान का वकील बनकर जितनी जद्दोजहद उसने अफ़गान तालिबान के लिए की, उतनी शायद उसने पाकिस्तान के लिए भी नहीं की। मेरे दोस्तों, अब ये सोचने की बात है, अफ़गान तालिबान हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं या पाकिस्तान को फतह करना चाहते हैं। जैसे भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए मुफ्ती बानी को ट्रेनिंग और पनाह दी, आज वैसे ही अफ़गान तालिबान TTP को ट्रेनिंग और पनाह दिए हुए हैं। अफ़गान तालिबान दोस्त नज़र नहीं आ रहे, ये उनकी एक पॉलिसी दोस्त की तरह नहीं। आज जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर ठाकर मजबूत हो रही है, और इसके बारे में अफ़गान तालिबान ने हमारे साथ किसी भी ताउन से तैयार नहीं बल्कि इनकार किया। वो हमारे साथ बॉर्डर मजबूत करने के लिए भी तैयार नहीं, बल्कि वो हमारे बॉर्डरों पर हमले कर रहे हैं और बॉर्डर को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब वक्त आ चुका, पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, पुलिसी साज़ों के लिए आज ये वक्त तय करने का है, और ज़रूरी है कि इनके साथ वही सलूक किया जाए जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ किया जाता है। हम एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क हैं, हमारे पास जदीद असला है, हमारे पास एक बहुत बड़ी फ़ौज है। हमें अपने दफा और अमन के लिए हर कदम उठाना चाहिए। अब हम अफ़गानिस्तान से भी डरते रहेंगे, ये भी वक्त आना था। मेरे दोस्तों, इस वक्त सारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए, बशमूल PTI, इनको बैठाकर इनको समझाया जाए और एक फ़ैसला किया जाए। अब ये फ़ैसला सियासी क़यादत के ऊपर है। जो मुहिब्बे वतन होगा
और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। जो भी बेवतन नहीं होगा वो तालिबान की हिमायत में अक्सर मुजाहरे करते हुए नज़र आएंगे। हमें अपनी अफ़गान पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है। ये जो हम जरगा सिस्टम देखते हैं, इधर आते हैं उधर आते हैं, इनको ख़त्म करना होगा। अब पाकिस्तान को सोचना होगा कि अफ़गान तालिबान का रोमांस ख़त्म करने को तैयार है और यही सही वक्त है अफ़गानिस्तान तालिबान के रोमांस को ख़त्म किया जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हमारा एक हल्का सा जायज़ा रिपोर्ट आपके सामने। इस वक्त अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है और क्या करेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखते हुए इन तालिबान से पाकिस्तान को बचाए। अगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाते हुए अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए नाक TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी